2025, Impact on GST and Customs, a comprehensive analysis. Our key speaker is Mr. Vikram Kulkarni. It is under guidance of Sumit Kumar sir, Principal ADG, Directorate General of Taxpayers Services, Mumbai Zonal Unit. Now I would like to welcome all the participants and the departmental officers on behalf of Directorate General of Taxpayers Services, Mumbai Zonal Unit. I take this opportunity to welcome our Principal Additional Director General, Shri Sumit Kumar sir, who is an IRS officer of 1994 batch. Sir, Principal ADG Director General sir, I would like to request you to please deliver the welcome address. Sir, over to you. I think there is some technical glitch. For a minute, if you can wait. Audible? Yes, madam, you're audible. Achha, I don't know. Welcome, sir. Sir, can you hear? Am I audible? Yes, sir. A little louder, sir, please. आवाज तो हमको नहीं सुनाई। हाँ. कौन सा सर? आप कुछ बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो? Hello, sir. Can you hear us? We can't hear you, sir. You are not audible. I am audible now? Yes, sir. Okay, thank you. You may have to speak a little louder, sir, I think. Okay, now I'm audible now? Yes, sir. Okay, thank you. So I thank Mr. Sandeep Jain, President of Bombay Metal Exchange, Mr. Naveen Sharma, President of Material Recycling Association of India, Shri Jimmy Malikal, Vice President, Chamber Association of Maharashtra Industry and Trade, and all my colleagues and all the participants who joined in this webinar. I extend a very warm welcome to all of you. I greatly appreciate the support and cooperation extended by BME, MRAI, and CAMET. These associations have been helping us in bringing these very useful webinars to the various participants, and in also accelerating grievance redressal to help us understand the needs and redress the problems in the right perspective. I would like to mention that regular webinars, seminars, and our mandate is to reach up to the taxpayers in all industry laws, rules, procedures. This time in the context of the budget, which were presented by the Honorable Finance Minister, and also to understand the doubts, if any, following these changes. It has been a constant endeavor to bring in these current and relevant topics, to bring in experts who can help us, the participants, enrich their knowledge and become aware of the changes. This awareness should translate into better compliance
better incidence of taxpayers being able to take care of their tax compliance requirements. In the past, we have handled many topics in GST, and today our topic is Budget 2025 impact on GST and customs of the proposed changes. Now, as people who have been watching the budget presentation would know that the Honorable Finance Minister and government is aiming to simplify compliance. By simplifying compliance, we also hope to boost economic growth and also increase the revenue collection. The key highlights of the budget were several changes in the GST law, several changes in custom procedure and duty changes in customs. We were also gratified to see that the largely industry has welcomed these changes. From the perspective of Central Board of Indirect Taxes and Customs, we are looking at effective implementation, and we also want to enhance the taxpayer. Vikram Kulkarni, he has been partnering with us earlier also. He's a partner taxation Ernst & Young. He has over 3 decades of professional experience in the indirect tax field. He was a part of the Custom and Central Excise Department prior to his joining in the industry for more than 22 years. During his service here, he was facilitated with certificate of appreciation. He regularly advises on GST, custom, foreign trade policy, and other matters. He has also experience of audits, investigations, and is a visiting faculty at NASAN in Mumbai. I welcome all the participants to this webinar, and I hand over the stage to my colleague, Pradeep. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now I take this opportunity to introduce today's trade panelist, Shri Sandeep T. Jain, President of Bombay Metal Exchange Limited. Sir, please. Sandeep ji. Thank you, Rinaji. So good afternoon, everyone. Respected dignitaries, Shri Sumit Kumar, Principal ADG, DGTS MZU, Shri Pradeep Jajaria ji, Shri Vikram Kulkarni ji, today's speaker, partner Ernst & Young, also officers from DGTS, Rina ji and Praveen ji, Shri Naveen Sharma, Vice President MRAI, Shri Jimmy Malaikal, Vice President CABINET, BME office bearers, directors and members, distinguished guests and friends from the trade and industry. For over 90 years, the Bombay Metal Exchange Limited has been a vital part of India's non-ferrous metal trade, serving a wide range of members from traders and recyclers to MSMEs and large industries. We are privileged to have the DGTS Mumbai Zonal Unit present a comprehensive analysis of the Budget 2025 impact on GST and customs, offering us valuable insights on this important topic. We would appreciate if Shri Vikram Kulkarni ji could use a mix of Hindi and English in his presentation so that everyone can follow along easily. I would like to use this opportunity to bring the following critical issues to the attention of the DGTS with the request they be forwarded to the CBIC and the GST Council for further consideration. The one is GST TDS on metal scrap. The 2% GST TDS deduction on metal scrap intended to curb fake invoicing has proven ineffective and requires further review. The 2% levy presents a substantial amount, particularly considering the value of raw materials like copper. The cumbersome refund process and associated compliance burden hinder ease of doing business. Trade associations have suggested a more effective approach, a 2% incentive for unregistered dealers, that is URD, to encourage their participation in the tax regime. We propose modifying the 2% GST TDS to apply specifically
to the transactions between registered dealers and unregistered dealers instead of current registered to register. Second point is if we can change the GST system into real time, like the GST Council should explore the feasibility of implementing a real-time GST collection and payment system similar to existing banking transaction system. Accurate HSN code matching would be crucial for the success of such a type of system. Then there is one issue related to custom clearance. So custom clearance of ferrosilicon alloys. A customs related issue affects the product ferrosilicon. While ferrosilicon is under BIS, ferrosilicon calcium, which is not under BIS, faces unnecessary delays. Custom officers currently require a no objection certificate from the Steel Ministry for every import of ferrosilicon calcium. This requirement is unwarranted and creates unnecessary hurdles. We request that the ministry issues a clarifying circular explicitly stating that an NOC is not required for ferrosilicon calcium imports. We trust this webinar will be highly informative and address all our key concerns. Let's now engage in a meaningful discussion and learn from each other. Thank you very much. Yeah, over to you, Reena ji. Yeah. Sorry, sir, there was some technical issue again for the net, but yes. Now, I welcome our second trade panelist, Naveen Sharma ji, President, Material Recycling Association of India, MRAI. Sir, over to you. Thank you, Reena ji. Honorable Sumit Kumar ji, Principal ADG, Pradeep ji, Vikram ji from E&Y, my trade colleague Sandeep Jain ji, President BME, Mr. Jimmy VP CAMIT. Thank you for giving this opportunity, and I think as a MRAI, we are participating. This is the fourth such interaction on the changes which has taken place in past. And today's topic, basically, we are discussing the 8 major provisions which has been changed in GST in the current budget. And when it comes to problem of the trade, Sandeep ji has already mentioned that, and that problem of everyone that can be taken up here or separately. So I would ask all the participants to take advantage on the clarification, because we have a good presenter from E&Y, and also, as I was told, he's ex GST department, Kulkarni ji. So thank you again for giving this opportunity. Over to you. Thank you, sir. Our third trade panelist is Shri Jimmy Malaikal ji, Vice President, Chamber of Association of Maharashtra Industry and Trade. Sir, over to you, Jimmy, sir. Sir, we cannot hear you. You are not audible, sir. I'm audible now? Right, sir. You are. Good afternoon, everyone. I'd like to thank all the dignitaries who are present right now, the GST department, as well as my fellow trade panelists who are here. And I'm sure I would like to thank you sincerely, the GST department, for having this time-to-time GST webinars, which will definitely help our colleagues, our members. And I'll surely pass all the information as possible that what I get from this webinar, and hope that the recording of this webinar is passed on to us so that we can forward it in our group, so that they are well informed about the changes that has occurred in the recent budget. Thank you, everyone. We'll share the PPT, sir, whoever wants. And now I would like to introduce our today's eminent speaker, Shri Vikram Kulkarni ji. He has been already introduced by my principal ADG, sir. He is a partner taxation in E&Y Ernst & Young LLP, and he has got 30 years of professional experience in the indirect tax domain. And he has been working for more than 22 years. He has been ex-superintendent of GST, I mean Central Excise. And earlier he has also worked in Deloitte and BDO for 8 years. And he has been a visiting faculty in National Academy of Indirect Taxation, NASE in Mumbai. So, sir, welcome to you, Vikram, sir. I request Vikram Kulkarni ji to begin his presentation.
Thank you, Reena ji. Just let me know whether I'm audible and whether my screen is visible. Yes, you are Yes. audible, sir. And is my screen visible? 1 minute, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Thank you so much, Reena ji. Honorable Sumit sir, Principal ADG, DGTS, Sandeep ji, Naveen Sharma ji, Jimmy ji, and the entire DGTS team, and all the participants who have logged in to attend this webinar. It's indeed a privilege to be a part of this presentation or this opportunity which has been given by DGTS to me to present this, speak on this very important subject. As we all know that budget is something which the entire industry looks towards, not only common man, but the industry especially looks towards with what kind of changes are being brought in, what kind of facilitations are being introduced into the budget, and is it going to make our life more comfortable or more bearable, so to say. Because we all know that taxation and regulatory matters somehow pinch the industry, and they always feel so that something should be always there, which makes their life more comfortable as far as the taxes is concerned. And going by the initiative and the overall approach of the government, we see that in the last so many years, as the overall trend has been changed, and an atmosphere of trust has been brought into the whole system, whole scheme of things, wherein there used to be controls, a lot of controls, a lot of regulations, and we have moved towards a trust-based kind of system. In our especially into the indirect tax domain. And therefore, every year we always look towards the budget as to what's new which is coming to make this more conducive to the overall business climate of our country. And I must say that the way things are going, I mean, we have come a long way, and yes, the vision of our Honorable Prime Minister to see our country as one of the topmost industrialized economy by 2047 is not far. Probably we'll achieve it much way earlier than what has been anticipated upon. So with these words, I will start with the recommendations in the union budget on the GST first, and then we'll take customs. So moving on. Allow me a second. So a very important change has been brought into the CGST Act, and especially the Schedule 3. I mean, as we all know that GST primarily is governed by, and the issues are decided by the GST Council. And GST Council take cognizance of all the issues which are represented to it by the trade time and again, and then the council deliberates over those issues and irons out any issues and or fills up the gaps which are there and which are making creating difficulties to the trade. So GST Council, the last council happened, that is the 55th GST Council meeting, took a lot of decisions, and in those decisions, many of those decisions are being brought into or introduced in this budget to bring it as a part of the statute. One more thing, I've been requested to also speak in Hindi because there are some members amongst us who would be more comfortable to understand in Hindi. So I will try to juggle up between the two languages, and pardon my grammatical errors if any. So आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल ने काफी रिकमेंडेशंस दी थी, और उनमें से कुछ रिकमेंडेशंस को इस बजट के अंदर एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है ताकि हमारे कुछ डिफिकल्टीज सॉर्ट आउट हो सके. अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज दैट शेड्यूल 3 के अंदर, आपको पहले बता देता हूं, शेड्यूल 3 जो है सीजीएसटी एक्ट का, वो डील करता है ऐसी सप्लाईज से जो ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगी, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगी. मतलब कुछ ऐसी सप्लाईज है जिनको आप ना गुड्स की सप्लाई मानेंगे, ना सर्विसेज की सप्लाई मानेंगे. उसका मायने ये होता है कि
आपको उनसे रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन्हीं सर्विसेज के अंदर कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनके अंदर देयर वाज अ गैप इन द अंडरस्टैंडिंग। आई मीन, अगर बॉन्डेड वेयरहाउस में से अगर कोई गुड्स किसी दूसरे को सप्लाई किए जाते हैं, कोई दूसरा बॉन्डेड वेयरहाउस में से परचेज करता है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए, बॉन्डेड वेयरहाउस में रखे और आपने उसी बॉन्डेड वेयरहाउस में किसी और को बेच दिए, और फिर जिसको बेचा है उसने बिल ऑफ एंट्री फाइल करके अपना गुड्स क्लियर किया, उस ट्रांजैक्शन को, मींस आपके और उस खरीदार के ट्रांजैक्शन को शेड्यूल 3 में डाला गया था, जिसका मतलब ये था कि ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। अब इसमें यह सवाल पैदा हो गया कि जो गुड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है या फिर फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन में है, उनमें अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन होगा तो क्या वह इसमें कवर होगा? अपेरेंटली इस विषय के ऊपर काफी जजमेंट्स हुए, कोर्ट के अंदर ये डिस्कशंस हुए, एआरस ने इसके ऊपर स्टैंड लिया और इसमें काफी डिफरेंट स्टैंड्स आए। ये कई जगह पे हेल्ड किया गया कि चूंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फ्री ट्रेड जोन इन अ स्ट्रिक्टेड सेंस बॉन्डेड वेयरहाउस नहीं है, इसलिए वो उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। और इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन में अगर अपना गुड्स इंपोर्ट किया है और किसी और को बेच दिया जो फाइनली वहां से क्लियर कर रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी आने की आशंका थी, यह डाउट क्रिएट हुआ था। सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड काफी लोगों को इसमें परेशानी हो रही थी। और ये बहुत कॉमन तरीके का ट्रांजैक्शन है। काफी कमोडिटीज ऐसी हैं जिसमें कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जब आप इसको इंपोर्ट करते हैं, फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन में रखते हैं, एफटीडब्ल्यूजेड में या एसईजेड में, उसके बाद या तो आप उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और या फिर उसको डोमेस्टिक मार्केट में बेच देते हैं, या फिर आप किसी और को बेच देते हैं। गुड्स कहीं ट्रांसफर नहीं होते, गुड्स वहीं रहते हैं, लेकिन ओनरशिप चेंज हो जाती है। तो यह डिफिकल्टी को डील करते हुए इस बार काउंसिल की रिकमेंडेशन थी कि इस तरह के जो ट्रांजैक्शन हैं उनको भी शेड्यूल 3 में लाया जाए। सो अकॉर्डिंगली पैरा 8 ऑफ शेड्यूल 3 में एक क्लॉज AA जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस इन एन SEZ और एन FTWZ टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट्स और टू द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया हैज बीन इंक्लूडेड। एंड देयरफॉर ये जो दिक्कत आ रही थी वो अब दिक्कत नहीं पेश आएगी। और सबसे बड़ी बात, इस अमेंडमेंट को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है, मींस इसको 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव किया गया है। यानी अगर आपने पास्ट में इस तरह के ट्रांजैक्शंस किए होंगे तो उसके ऊपर किसी तरह का टैक्स आपसे डिमांड नहीं किया जाए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज अबाउट द प्री डिपॉजिट। नाउ आप सभी को मालूम है कि अगर कोई टैक्स कंफर्म होता है या जीएसटी आपके ऊपर कंफर्म होती है तो आपको अपील में जाने की आपको अपॉर्चुनिटी रहती है। सो अपील में जब जाते हैं तो आपको एक प्री डिपॉजिट भरना होता है एंड वो प्री डिपॉजिट भर के आप अपील फाइल कर सकते हैं। सो अब इसमें कुछ केसेस ऐसे थे जहां पे कि सिर्फ पेनल्टी लगी थी, जीएसटी नहीं था। अब ऐसे केसेस के अंदर कहीं पे प्रोविजन नहीं था लॉ के अंदर कि ऐसी अपील के टाइम पे क्या किया जाए, मतलब आपको डिपॉजिट भरना है या नहीं भरना है। तो अब जो है उस चीज को, लैक्यूना को भर दिया गया है। अगर आपके ऊपर सिर्फ पेनल्टी लगी है या किसी के ऊपर पेनल्टी लगी है तो उस पेनल्टी का 10% विल बी द प्री डिपॉजिट व्हेन यू आर फाइलिंग एन अपील बिफोर द अपीलेट फोरम, बी इट एन अपीलेट अथॉरिटी और द अपीलेट ट्राइब्यूनल। सेकेंडली, इसमें एक और डेवलपमेंट हुई है, जो ई वे बिल से रिलेटेड मैटर्स होते थे जो कि 107 के अंदर कवर होते थे, सेक्शन 107 में। उसके अंदर सेक्शन 129 में पेनल्टी लगती थी, या यूं कहिए कि एक प्री डिपॉजिट देना पड़ता था अगर आपका गुड्स या कन्वेंस को ट्रांजिट में रोका गया है और कुछ उसमें त्रुटि पाई जाती है तो 25% जो है वो पेनल्टी भरी जाती थी। अभी उस पेनल्टी को भी रिड्यूस करके 10% पे ले आया गया है। सो ऑल पेनल्टीज जो है उनके अंदर प्री डिपॉजिट जो है वो 10% पे ले आया गया है। और ये जो अमेंडमेंट है ये अगेन 55th काउंसिल की एक रिकमेंडेशन थी, उसी पे ये इंट्रोड्यूस की गई है एंड दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड। मूविंग ऑन, a very important
development which has been introduced, and that is the track and trace mechanism. ये भी अगेन 55th काउंसिल का ही एक आउटकम है. उस समय एक ये रिप्रेजेंटेशन हुआ था कि और रादर ये ऑब्जर्व किया गया था कि टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं या पान मसाला है, गुटखा जो है, उसके अंदर बहुत ज्यादा इवेजन होता है टैक्स का, और मूवमेंट्स को ट्रैक करने का कोई मैकेनिज्म लाना चाहिए. देयरफॉर गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा है, एक सेक्शन 148A जो है वो प्रपोज किया है इंट्रोड्यूस करने के लिए, विच विल एनफोर्स अ ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म फॉर स्पेसिफाइड इवेजन प्रोन कमोडिटीज. यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें कौन कौन सी कमोडिटीज इंट्रोड्यूस की जाती हैं. सो एज पर एज दिस प्रोविजन इज कंसर्न, इट सेज दैट the government may notify a class of persons dealing with specified goods to affix a unique identification marking containing such information as may be prescribed. And further इसमें unique identification marking को define किया गया है. Unique identification marking includes a digital stamp, a digital mark, or any other similar marking which is unique, secure, and non-removable, as may be notified by the government under section 2 of section 148A. So apparently ये एक तरह का मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट will come out with more detailed guidelines on this, कि जो certain commodities हैं जो भी आइडेंटिफाई की जाएंगी, उन कमोडिटीज के क्लियरेंस के टाइम इस तरह का एक मार्किंग उन पे लगाया जाएगा. जो मैंडेट किया जाएगा वो एक डिजिटल फॉर्म में होगा, जिसे मिटा नहीं सकते हैं, जिसके अंदर जो स्पेसिफाइड डिटेल्स है वो होनी चाहिए, और एक वो मार्कर रहेगा जिसके रहते आप उन गुड्स को ट्रैक और ट्रेस कर सकते हैं. किसी भी वक्त वो गुड्स कहाँ पहुंचा रहे हैं, किधर पहुंचे हैं, किस वक्त कहाँ पे थे, यह सब उससे डिटेक्ट किया जा सकता है. तो इस तरह का एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, और अगर इसमें कोई फेलियर करता है कंप्लाई करने में, तो उस पे पेनल्टी भी वो प्रेषित की गई है, एंड दैट पेनल्टीज वुड बी इक्वल टू 2 lakhs of rupees or 10% of tax payable on such goods whichever is higher. So एक पेनल्टी भी रखी गई है. So यहाँ पे मैं एक पॉज लूंगा, और संदीप जी से मेरी जो बात हो रही थी, वो जो संदीप जी ने मेंशन भी किया था ड्यूरिंग हिज स्पीच, उसको मैं रेफर करूंगा कि उनको काफी कंसर्न्स थे कि ऐसे नॉन फेरस मेटल इंडस्ट्री जो है उनको काफी दिक्कतें आती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु आर एंगेजिंग इन इवेजन ऑफ जीएसटी, और फेक इनवॉइसिंग होती है, विदाउट मटेरियल मूवमेंट ऑफ मटेरियल, इस तरह का काम होता है, और उसका भुगतान पूरी इंडस्ट्री को करना पड़ता है. तो आई थिंक संदीप जी, दिस थिंग, ये जो प्रोविजन लाए हैं, अगर इसको एक्सटेंड किया जाता है टू योर इंडस्ट्री एज वेल, तो आई थिंक आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी. क्योंकि अगर गुड्स कैन बी ट्रेस्ड, कैन बी ट्रैक्ड एट एनी गिवन टाइम ऑन रियल टाइम बेसिस, तो आई थिंक जो जेन्युइन सप्लायर्स हैं वो उनको प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो प्रोविजन है ये ही उनके डिफेंस में आ जाएगा. और जो लोग इवेजन करना जिनका पेशा है या जो फ्रीक्वेंटली करते हैं, उनके लिए एक बहुत ज्यादा डेटरेंट मेजर हो जाएगा, क्योंकि अगर वो पकड़े गए और उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह का मार्क नहीं है या उन्होंने मूवमेंट नहीं किया है, तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना. सो आई थिंक this provision is a very welcome move, especially for those assessees who are sincere and who want to comply with all the regulations. लेकिन उनको प्रॉब्लम ये होती है कि जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं who indulge in such unscrupulous activities or like fake invoicing, वो पूरे मार्केट को खराब करते हैं, उनके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आता है. सो दिस आई एम श्योर वुड हेल्प. सो हो सकता है अगर ये आपके कमोडिटीज पे लाया जाए तो मे बी इट विल डेफिनेटली हेल्प यू in addressing the concerns which you just mentioned. Moving on to the next recommendation. Next recommendation जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स का जो प्रोविजन है उसे ओमिट कर दिया गया है. सो अभी ये क्या होता है, अभी आपने वाउचर्स जो होते हैं आपने देखा होगा कि कुछ भी कई सारी स्कीम्स ऑफर होती हैं. आप कुछ ऑनलाइन परचेज करते हैं, आपको वाउचर्स मिलते हैं, या आप शॉपर शॉप जाते हैं, वहां से शॉपिंग करते हैं, आपको वाउचर्स मिलते हैं जिसको आप रिडीम करा सकते हैं, उसके एवज में कुछ खरीद सकते हैं.
तो इसमें ये था कि इसमें काफी डिबेट्स चली, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनी केसेस के अंदर ये बना कि ये जो वाउचर्स हैं क्या ये मतलब इन पे जीएसटी आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। तो कुछ जगहों पे ऐसा होल्ड किया गया कि यस वाउचर्स जीएसटी में कवर होने चाहिए। कुछ जगह पे ऐसा डिसीजन हुए कि नहीं, वाउचर्स जो हैं दे आर जस्ट लाइक मनी या एक्शनेबल ये है इंस्ट्रूमेंट्स है, तो देयरफॉर उनके ऊपर चूंकि मनी इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी, इसलिए इसके ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो ये किसी तरह का कंफ्यूजन चल रहा था। तो अगेन ये मैटर 55th काउंसिल के सामने आया, काफी डेलिब्रेशंस हुई और उसके बाद में ये डिसाइड किया गया कि ये जो टाइम ऑफ सप्लाई वाली बात है या जो वाउचर्स की बात है उसको उस पूरे प्रोविजन को हटा दिया गया है। मींस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय सप्लायर द टाइम ऑफ सप्लाई वाज जो पहले था विल बी द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर if the supply is identifiable at that point or the date of redemption of voucher in all other cases। अब ये पूरा प्रोविजन चला गया। अब इस प्रोविजन के चले जाने से क्या मतलब होगा, क्या इंपैक्ट होगा? इसका इंपैक्ट ये होगा कि पहली बात की वाउचर इशू होना या वाउचर रिडीम होना, इस एक्टिविटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर जो गुड्स जो भी हैं परचेज किए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट में या सर्विसेज परचेज की जा रही हैं उनके ऊपर डेफिनेटली जीएसटी लगेगा। तो ये जो कंफ्यूजन था ऑन द वाउचर्स, इसको बहुत हद तक रिजॉल्व कर दिया गया है, बिकॉज अदरवाइज तरह तरह के उसके ऊपर स्टैंड लिए जा रहे थे और उसको एक तरह से इन्होंने क्लोजर दे दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग प्रोविजन विच हैज बीन ब्रॉट इन is about section 17(5)(d) of the GST Act, which talks about plant or machinery, which has been now replaced by plant and machinery। अब इसके पीछे एक बैकग्राउंड है सर, शायद आप में से कई लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बीच में केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था सफारी रिट्रीट्स का केस। उस केस के अंदर ये इशू डेलिब्रेट हुआ था। अब आप जानते हैं कि सेक्शन 17(5) जो है सीजीएसटी एक्ट का, वो जो है वो इट एक्सक्लूड्स सर्टेन आइटम्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ जीएसटी। यानी कि आप कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं 17(5)(d) की ही बात करूं अगर, तो 17(5)(d) के अंदर ये था कि goods or services or both received by a taxable person for a construction of an immovable property other than plant or machinery on his own account, including when such goods or services or both are used in the course of furtherance of business। अब इसमें यह हुआ था कि 17(5) के अंदर इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, बट उसमें एक एक्सक्लूजन दिया था कि अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। और अब हुआ यह था कि प्लांट और मशीनरी मतलब एक नॉर्मल पार्लेंस में अगर आप लेंगे तो आपने अगर फैक्ट्री डाली है तो उसके अंदर आप जो प्लांट या मशीनरी यूज करेंगे उसके अंदर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं एज ए कैपिटल गुड्स करके। सवाल यह था कि अगर लिए प्लांट की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, या वो मॉल आपके लिए प्लांट की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। अब इसमें ये हुआ कि भाई प्लांट और मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी ये एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यही देखा। तो एक्सप्लेनेशन में देखा गया कि 17(5) का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें डिफाइन किया गया है प्लांट एंड मशीनरी को, जबकि यहाँ पे शब्द यूज हुए हैं प्लांट और मशीनरी। तो कोर्ट ने ये कहा कि प्लांट और मशीनरी ये अलग है, प्लांट एंड मशीनरी ये अलग है, एंड देयरफॉर प्लांट और मशीनरी कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। जब डिफाइन नहीं किया गया है तो जो इंटरप्रिटेशन इन्होंने लिया है वो ठीक है, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। भारत सरकार ने जब इसके ऊपर डेलिब्रेट किया और देखा तो पाया कि शायद ये
जो है ये किसी तरह का क्लैरिकल एरर है। इंटेंट वो नहीं था गवर्नमेंट का। इंटेंट गवर्नमेंट का ये था कि प्लांट हो और मशीनरी हो ऑफ एनी काइंड, आई मीन स्पेशली इफ इट इज पर्टेनिंग टू रियल एस्टेट, तो आपको नहीं मिलेगा। अगर वो प्लांट या बिल्डिंग, लैंड या बिल्डिंग है, या कोई टावर है, टेलीकम्युनिकेशन टावर है, या पाइपलाइन है, इस तरह का अगर कोई अगर चीज है, तो उसके ऊपर क्रेडिट नहीं देना। ये इंटेंट था लेजिस्लेशन का। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस और एंड इसके कारण जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, उसके कारण काफी बड़ा लिटिगेशन बन गया। तो देयरफॉर उस चीज को रेगुलराइज करने के लिए इस बार बजट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, ये एक प्रोविजन लाया गया है जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन को इंसर्ट किया है कि इट इज क्लैरिफाइड that notwithstanding anything to the contrary in any judgment, decree or order or any court or tribunal or any other authority, any reference to plant or machinery shall be construed and shall always be deemed to have been construed as a reference to plant and machinery. इसका मतलब ये हो गया कि कहीं भी प्लांट और मशीनरी यूज किया हो, चाहे प्लांट एंड मशीनरी यूज किया हो, दोनों का मतलब सेम होगा। और इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया, यानी 1 जुलाई 2017 से ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया है। सो इफेक्टिवली जो हम बात कर रहे थे कि आप मॉल बनाते हैं या आप होटल बनाते हैं, तो आपके लिए क्या उसको आप प्लांट ट्रीट कर सकते हैं? हो सकता है वो प्लांट हो, लेकिन बेसिस दिस एक्सप्लेनेशन वो एक्सक्लूड हो जाता है। सो इसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो दिस हैज ब्रॉट इन सम क्लैरिटी एंड काफी डिस्प्यूट्स जो है इसके कारण रुक जाएंगे। हालांकि इंडस्ट्री में हैव डिफरेंट थॉट्स अबाउट इट, क्योंकि उनके लिए एक मेजर चंक जो है वो एज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट लॉस हो गया है। आगे बढ़ते हैं। एक और डिस्प्यूट होता था काफी जगहों पे। आपको मालूम है कि लोकल अथॉरिटी जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, उस पर कई बार डिबेट्स हुई हैं। और आई मीन ये है कि अगर गवर्नमेंट and any other authority legally entitled to or entrusted by the central government or any state government with the control or management of municipal fund और लोकल फंड। नाउ एक कंसेप्ट लाया गया है इसमें कि ये लोकल फंड और म्यूनिसिपल फंड जिनके पास में है, जिस भी अथॉरिटी के पास में, दे विल बी ट्रीटेड एज द लोकल अथॉरिटी। अब उसमें उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि लोकल फंड क्या होता है। तो लोकल फंड वो है जो किसी अथॉरिटी के कंट्रोल या मैनेजमेंट में है इफ इट इज इन रिलेशन टू अ पंचायत एरिया और विच इज लीगली वेस्टेड विद द पावर्स टू कलेक्ट, लेवी एंड अप्रोप्रिएट एनी टैक्स, ड्यूटी, टोल एक्सेट्रा बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। सो एनी पंचायत एरिया में ऐसी कोई अथॉरिटी है तो उसको लोकल फंड वो कलेक्ट करेंगे। और वही अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है या म्युनिसिपल एरिया है तो उसको म्यूनिसिपल फंड के नाम से जाना जाएगा, जो फंड्स के ऊपर उस अथॉरिटी का कंट्रोल है। तो यहां पे ये क्लैरिटी आ गई कि कोई भी अथॉरिटी वो लोकल अथॉरिटी तब मानी जाएगी जब वह इन में से किसी कैटेगरी में फॉल होगी। तो जो कि म्यूनिसिपल कमेटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या जिला परिषद के अंदर जो भी चैलेंज आ रहे थे, वो बाय वर्च्यू ऑफ दीज एक्सप्लेनेशन ये इशू काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। और ये जो अमेंडमेंट है ये डेट टू बी नोटिफाइड है, तब से ये लागू की जाएगी। नाउ a very important aspect has been brought into the ISD provisions. So आपको ये मालूम था कि ISD क्या होता है? पहले तो ये था कि ISD ऑप्शनल था एक जमाने में, ऐसा
थॉट प्रोसेस आई थी। 2024 के बजट में इसको कंपलसरी कर दिया गया कि इनपुट सर्विस टैक्स सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको कंपलसरी, अगर आपको लागू है तो आपको करना पड़ेगा, आपको आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नाउ इसमें एक सबसे बड़ी चीज थी जो रह गई थी समहाउ, वो थी इंटरस्टेट आरसीएम सप्लाईज। मतलब हम जो भी ऐसी सप्लाईज हैं जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपके ऊपर टैक्स पे करने आता है, तो क्या वो इसमें कवर होंगी या नहीं। तो ये बाय वर्च्यू ऑफ दिस न्यू एडिशन दे हैव इंट्रोड्यूस्ड आरसीएम सप्लाईज, इंटरस्टेट आरसीएम सप्लाईज आल्सो इन द डेफिनेशन ऑफ द इनपुट सर्विस, इनपुट टैक्स सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का डेफिनेशन उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सो with something which was missing at that point of time, that has now been brought into the ISD supplies and brought in clarity, क्योंकि इसमें काफी अलग अलग थॉट्स चल रहे थे, कुछ लोग इससे कंप्लाई कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये आने से ये इंट्रोड्यूस होने से ये जो कंफ्यूजन है वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। ये अमेंडमेंट जो है, बट आपका प्रेजेंटेशन बंद हो गया दिखना सर। एक मिनट, सॉरी, जस्ट अ मिनट, allow me. Is it visible? दिख रहा है अभी? जी सर। Okay, sorry. Just a minute, let me know. I mean, I'll just start again. Okay, now we'll move on to the next and probably the last in the GST amendments, and that is introduction of IMS functionality, that is introduction of invoice management system functionality. Now आपको एक मालूम है अभी बीच में वेरी रिसेंटली एक नया प्रोविजन आया है जिसमें अंडर जीएसटी, जहां पे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम नाम की एक फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस की गई है अंडर जीएसटी। नाउ इसका मतलब ये है कि आपने अगर कोई इनवॉइस रेज की या आपने कोई क्रेडिट नोट रेज किया, तो आपका जो सामने रेसिपिएंट है, आपका जो बायर है, वो बायर ही विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। नाउ जब तक वो रिजेक्ट या उसको ओके नहीं करता है, तब तक वो आपके 2B में नहीं दिखेगा। पहले ये होता था कि ऑटो जनरेटेड 2B निकलता था, जीएसटीआर 2B, जिसमें आपको जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है आपको दिख जाता था। अभी यहाँ पे सीन ये है कि आपके पास जो इनवॉइसेस आएंगी आपके सप्लायर की, या तो आपको उसको रिजेक्ट करना है या उसको एक्सेप्ट करना है। Same with your supplier, he has to accept it, your recipient or your client, he has to either accept it or reject it. Now इसमें एक important, मतलब इस फंक्शनैलिटी के आने से कुछ एक चीजों में चेंजेस आ गए, उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया गया है इन द जीएसटी एक्ट। सो अंडर सेक्शन 34 they have amended it in the proviso that provided that no reduction in so to reduce the output tax liability by the supplier in respect of credit notes, it is proposed to amend the provision in section 34(2), that is to impose an obligation on the supplier to ensure the reversal of ITC by the recipient. So effectively अगर आपने क्रेडिट नोट रेज किया है अपने क्लाइंट को, तो आपके क्लाइंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा अपने एंड के ऊपर, तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा या आपकी आउटपुट लायबिलिटी कम होगी, नहीं तो आपकी लायबिलिटी कम नहीं होगी। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू सच क्रेडिट नोट इफ अवेल्ड हैज नॉट बीन रिवर्स्ड बाय द सेड रेसिपिएंट वेयर सच रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन और इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑफ सच सप्लाई हैज बीन पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन इन अदर केसेस। सो ये आपको बेनिफिट ऑफ अ क्रेडिट नोट तब तक अलाउ नहीं होगा, तब तक परमिट नहीं होगा, जब तक आपका क्रेडिट नोट के इक्विवेलेंट वो सामने वाला रिवर्स नहीं करता है। और ये तभी रिवर्स होगा, इसका मतलब तभी होगा जब
आपने जो क्रेडिट नोट अपने रिपोर्ट किया है तो आईएमएस थ्रू आईएमएस फंक्शनैलिटी आपके बायर को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब उसने एक्सेप्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली इट इज डीम्ड दैट उनकी लायबिलिटी बढ़ गई, राइट, एंड देयरफॉर ही इज रिवर्स्ड इट, ऐसा डीम करके, और आपको वो बेनिफिट मिलेगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द IMS functionality. Next change has been brought into because of this IMS is in section 38. Now 38 में क्या था कि it talks about basically GSTR 2B. तो ये 2B जो था ये ऑटो जनरेटेड होता था, तो जब 2B जनरेट हो जाता था तो ऑटोमेटिकली उसके बेसिस पे अपन 3B फाइल करते थे। पर अब जो 2B है वो ऑटो जनरेट नहीं होगा बिकॉज ऑफ द IMS फंक्शनैलिटी। तो इसका मतलब वो ऑटो जनरेटेड वर्ड जो है उसको हटा दिया गया है in order to ensure that it will be generated post acceptance or rejection by the concerned people. तो ये ऑटो जनरेशन जो वर्ड है उसको हटा दिया गया है। तो ये सारे चेंजेस जो हम बता रहे हैं वो प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये उसके कारण ये फ्लो हो रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये सेक्शन 39 में जो है एक और चेंज लाया है कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन हैज बीन प्रपोज्ड टू बी एडेड टू 39(1) to provide the restrictions that GSTR 3B of taxpayer shall be allowed to be filed only after form 2B GSTR 2B of the said tax period is made available on the portal. So again यहाँ पे यह है कि आप 3B तब तक फाइल नहीं कर सकते जब तक GSTR 2B आपका पोर्टल पे जनरेट नहीं होता है। तो इसका जरूरत कहां से आया? इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में, जहां पे कि आपका बायर या आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को, तो ये उसके बाद ही जो आपका GSTR 2B है वो जनरेट हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता। तो देयरफॉर आप 3B तब तक फाइल नहीं कर सकते जब तक आपकी एग्जैक्ट लायबिलिटी डिटरमिन नहीं होती है। तो देयरफॉर, और उसके लिए जरूरी है कि GSTR 2B जनरेट हो। तो इसके लिए ये चेंज लाया गया है कि 2B जनरेट ना होने तक आप 3B फाइल नहीं कर सकते। पहले 2B ऑटो जनरेट हो जाता था तो इसलिए ये दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन अब 2B जो है उसकी डिपेंडेंसी हो गई है एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ऑफ द इनवॉइसेस और द क्रेडिट नोट्स या डेबिट नोट्स के ऊपर, एंड देयरफॉर ये रेस्ट्रिक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है। सो यहाँ पे हमारे GST के जो प्रोविजंस हैं वो खत्म होते हैं। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड दैट इज द कस्टम्स अपडेट्स। सो मूविंग ऑन टू द customs updates, let me just सबसे पहली चीज जो आई है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी गई है फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट्स के लिए। सो कस्टम्स के अंदर वी सी दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट्स पेंडिंग। इंपोर्ट्स के जो बिल ऑफ एंट्री है वो प्रोविजनली असेस्ड हैं और उनकी फाइनल असेसमेंट्स पेंडिंग है, बरसों बरसों से पेंडिंग पड़ी हुई है, और उसके कारण जो इंपोर्टर्स हैं उनका भी नुकसान हो रहा है और सरकार का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसमें कितना रेवेन्यू लॉक्ड अप है इट्स एनीबॉडीज गेस। तो इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस सेक्शन 18 के अंदर एक सेक्शन 1B सब सेक्शन 1B इंट्रोड्यूस किया गया इन द कस्टम्स एक्ट 1962 which provides a definite timeline of 2 years for finalization of provisional assessments. Means आपको डिपार्टमेंट को provisional assessments को 2 साल के भीतर उसको फाइनल करना है। This can be extended by 1 year by the commissioner if the proper reason is shown. So in any case within 3 years the bills of entry should be or shipping bills should be finally assessed. And उसमें एक उन्होंने एक्सेप्शंस डाल दिए हैं कि अगर कोई केस पेंडिंग है किसी एपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में किसी अपील में, तो फिर ऑब्वियसली वो असेसमेंट्स प्रोविजनल से फाइनल नहीं की जा सकती जब तक ये डिसीजंस नहीं आ जाते हैं। सो बारिंग दोज जहां पे किसी तरह का ऐसा डिस्प्यूट नहीं है उनको नहीं किया जाएगा, उनको छोड़ करके बाकी सबको फाइनली असेस्ड विद इन द टाइम लिमिट कर दिया जाना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इन द कस्टम्स सेक्शन 18 के अंदर, एक सेक्शन 18A जो है
वो प्रपोज किया गया है इंसर्शन के लिए। नाउ सेक्शन 18 जो है 18A जो है वो क्या बोलता है, इट इनेबल्स इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स टू वॉलंटरीली रिवाइज एनी एंट्री post the clearance of goods, treating it as self-assessment and allowing payment of duty or treating the revised entry as a refund claim. इसका मायना ऐसा है कि आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया या आपने शिपिंग बिल फाइल कर दिया, उसके बाद में आपको रियलाइज हुआ कि उसमें या तो आपने शायद वैल्यू आपसे गलती से गलत डल गई है या क्वांटिटी गलत डल गई है, कोई भी एरर हो गया है जो आपको लगता है कि विच नीड्स टू बी करेक्टेड, तो आप उसको करने के लिए पहले जो मैकेनिज्म था वो था सेक्शन 149। सेक्शन 149 ऑफ कस्टम्स एक्ट का प्रोविजन में आपको जाना पड़ता था, जिसमें कि आप अमेंडमेंट टू द डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करते हो ऑफिसर को कि भाई हमारा ये क्लियरेंस हो गया है, गुड्स हैव बीन क्लियर्ड, बी फॉर इंपोर्ट और बी फॉर एक्सपोर्ट्स, बट दिस इज द प्रॉब्लम विच वी नीड्स टू बी अमेंडेड, हमको ये डॉक्यूमेंट अमेंड करना है। तो उसमें डिपार्टमेंटल ऑफिसर उसको रिकॉल करता था और उसको अमेंड करता था, लेकिन उसमें ये था कंडीशंस की जो भी रीजन आपका है दैट डॉक्यूमेंट शुड हैव बीन इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एज द केस में भी। अब उसमें आपकी लिमिटेशंस बहुत लिमिटेड हो जाती थी, काफी लिमिटेड हो जाता था ये अमेंड कराने का जो प्रोविजन था। अब गोइंग बाय सेक्शन 18A, हालांकि इसके अंदर अभी काफी डिटेल्स आनी बाकी हैं, गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब हाउ इट हैज टू बी डन, व्हाट ऑल टाइप ऑफ केसेस will be covered in that, what will be the process to do it, लेकिन by introducing section 18A ये एक प्रोविजन लाया गया जिसमें कि अगर इस टाइप का एरर अगर हो गया तो आप खुद अपने उस डॉक्यूमेंट को अमेंड कर सकते हैं, आप बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल को अमेंड कर सकते हैं और इस चीज को सेल्फ असेसमेंट ट्रीट किया जाएगा, और अगर सपोज आपकी कोई डिफरेंशियल ड्यूटी है तो आप उसके अंदर पे कर सकते हैं। अगर आपने उसमें कहीं ज्यादा भर दिया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर अगर ज्यादा आपने ड्यूटी भर दी है तो यही आपका जो डॉक्यूमेंट है ये आपका एक रिफंड क्लेम बन जाएगा और आपका रिफंड प्रोसेस होगा। सो दिस सीम्स टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट विच इज कम इनटू द कस्टम्स एक्ट। देखना यह है कि इसके अंदर डिटेल्स आने के बाद कि किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करने के लिए किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं या किस तरह के ट्रांजैक्शन इसमें कवर किए जाते हैं, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। और ये जो है प्रोविजंस ये जब अपने यूनियन फाइनेंस बिल को प्रेसिडेंशियल असेंट मिलेगा उस दिन से ये लागू होंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है इस बार और वो है सेटलमेंट कमीशन को अबॉलिश कर दिया गया। सो 31 मार्च 2025 के बाद सेटलमेंट कमीशन विल नॉट बी देयर, उनकी जगह पे एक इंटरिंग बोर्ड रहेगा जो कि पेंडिंग केसेस को डिस्पोज ऑफ करेगा, जो अभी तक पेंडिंग एप्लीकेशन है सेटलमेंट कमीशन में उनको वो डिस्पोज ऑफ करेगा। सो अगर किसी को अब जो कोई ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनको सेटलमेंट कमीशन में जाना चाहिए तो दिस इज द टाइम, 31 मार्च 2025 तक सेटलमेंट कमीशन में एप्लीकेशंस फाइल की जा सकती हैं। 1 अप्रैल से सेटलमेंट कमीशन में कोई नई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, सिर्फ पुरानी जो एप्लीकेशंस पड़ी हैं उनको जो ये इंटरिम बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा वो उनको डिस्पोज ऑफ करेगा। उसके बाद में है एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ है इंपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। अगर आप किसी तरह का एग्जाम्पशंस क्लेम करते हैं जैसे 50/2017 ऑफ कस्टम्स नोटिफिकेशन है, उसमें कई एक कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स दी गई है कस्टम्स ड्यूटी की, पर उसमें एक सर्टेन प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपको IGCR प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अभी IGCR प्रोसीजर फॉलो करने का मतलब यही है कि एक सर्टेन मापदंड दिए गए हैं, आपको उनको फॉलो करना है, कुछ रिटर्न्स फाइल करने हैं जिससे कि गवर्नमेंट कैन कीप अ ट्रैक ऑन दैट जो एग्जेम्पशंस लिया गया है वो जेन्युइन लिए गए हैं, कहीं पे उसका मिसयूज नहीं हुआ है। बहरहाल उसके अंदर जो कुछ टाइम लिमिट्स थी कि आप अगर इंपोर्ट करके लाए हैं गुड्स को, तो अगर आप उसको आपको एंड यूज करके और निकालना है तो आपको टाइम लिमिट थी 6 महीने की, आपको 6 महीने में उसको यूज करना है, या फिर आपको जॉब वर्क को भेजना है तो जॉब वर्क से आपको 6 महीने में लेके आना है। तो ये 6 महीने की टाइम लिमिट काफी कम लगती थी लोगों को, सो उसको एक्सटेंड करके 1 ईयर कर दिया गया है। सो दिस टाइम लिमिट्स इज नाउ 1 ईयर इन IGCR। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज जब आप IGCR क्लेम करते हैं तो आपको मंथली रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। ये लोगों को काफी कंबरसम लग रहा था, एक और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आ गई थी, तो इसको
पीरियोडिसिटी इसकी कम कर दी गई है. नाउ इंस्टेड ऑफ मंथली रिटर्न्स दिस विल बिकम क्वार्टरली रिटर्न्स. सो अब इंस्टेड ऑफ मंथली ये IGCR रिटर्न्स जो हैं वो हर क्वार्टर में फाइल किए जाएंगे. तो ये अगेन प्रेसिडेंट्स असेंट के बाद में ये प्रोविजन लागू किया जाएगा. उसके बाद में इस बार टैरिफ शेड्यूल के अंदर काफी चेंजेस लाए गए हैं. मतलब ये गवर्नमेंट का एंडेवर रहा है पिछले कुछ सालों से कि जो टैरिफ के अंदर ड्यूटीज दी गई हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए. बहुत सारी अलग अलग रेट्स थी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, बेसिक कस्टम्स ड्यूटीज को गवर्नमेंट हर साल धीरे धीरे उनको रिड्यूस करते आ रही है. और इस बार जो नंबर ऑफ टैरिफ ड्यूटी रेट्स हैं वो 15 से घटा के 8 कर दी गई हैं. सो आज की डेट में 8 ही हैं डिफरेंट रेट्स. पहले ज्यादा थी, अलग अलग कमोडिटीज के हिसाब से काफी सारी रेट्स थी, उनको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है. सिमिलरली कई टैरिफ रेट्स को एट पार विद द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन लिया गया है, क्योंकि कई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस का सनसेट क्लॉज भी है कि at certain time these notifications will be rescinded. तो उस समय जो अगर टैरिफ रेट ही उसके बराबर लाके रख दी गई है तो देन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है. तो इस तरह से गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स दैट रेजिम वेयर द टैरिफ रेट्स विल डिटरमिन the rate of duty on the goods and to do away with the exemption notifications which are so many. उसी तरह से the tariff rate on certain products like textile, IT and electronic sector have been increased primarily to give a boost to the domestic industry. And tariff rates have been changed in certain cases without affecting the effective rate of duty in respect of 49 items. And this will be effective from 1st May 2025. Similarly, हम एक कवर कर रहे हैं इंडस्ट्री वाइज अपडेट जो मेजर इंडस्ट्रीज, हालांकि काफी सारी सेक्टर्स में हुआ है डेवलपमेंट, बट सर्टेन इंडस्ट्रीज के अंदर विच विल बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू टू सी, जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें BCD जो है उसके अंदर एग्जेम्पशन दिया गया है. मतलब अगर आप बैटरी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेट्स से विच इज लिथियम आयन बैटरी फॉर EVs के लिए, अगर आप लिथियम आयन बैटरी बनाते हैं तो कुछ कैपिटल गुड्स को एग्जेम्पशन था. अभी उस लिस्ट के अंदर 35 और कैपिटल गुड्स ऐड हुए हैं. मीन्स अगर आप ये बैटरीज के लिए जो EVs के अंदर यूज होती हैं, अगर कैपिटल गुड्स आपको इंपोर्ट करने हैं तो 35 मोर कैपिटल गुड्स हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम BCD. सिमिलरली अगर आप मोबाइल फोन्स की बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें भी कुछ कैपिटल गुड्स को एग्जेम्पशन था. अभी वो उस लिस्ट को और बड़ा कर दिया गया है. 28 मोर कैपिटल गुड्स हैव बीन एडेड टू दैट एग्जेम्पशन लिस्ट. सो ऑल इन ऑल यहां दिख रहा है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक जबरदस्त बूस्ट देने की बात की जा रही है. ऑटोमोबाइल सेक्टर, ना ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जैसे जो सर्टन मोटर व्हीकल्स हैं या सर्टन टाइप की मोटरसाइकिल्स हैं, उनको BCD काफी हद तक घटा दी गई है. और हालांकि इन कई केसेस के अंदर जो इफेक्टिव रेट है वो शायद चेंज ना हो, ओनली इन सर्टन केसेस, क्योंकि वहां पे BCD तो जरूर कम कर दी गई है, लेकिन उसके बराबर जो घटाया है उसके बराबर AIDC इंपोज कर दिया गया है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जिसे बोलते हैं. सो ये सर्टन प्रोडक्ट्स के अंदर BCD को घटा के AIDC इक्विवेलेंट लगा दिया गया है. सो नेट इफेक्ट वही रहेगा. मूविंग ऑन, फार्मा सेक्टर के अंदर भी काफी एग्जेम्पशन दिया गया है. काफी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं उनको BCD की एग्जेम्पशन लिस्ट में डाला गया है. लाइफ सेविंग मेडिसिन जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है. इसी तरह से बेसिकली कई फार्मा प्रोग्राम्स चलते हैं, उनके अंदर जो ड्रग्स यूज होते हैं तो उसके अंदर काफी एग्जेम्पशन दिया गया है. सो ऑल इन ऑल FM जो बोली थी मेडिकल टूरिज्म के ऊपर जो उन्होंने बोला था, प्रोबेबली दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स बूस्टिंग दैट. We know that people are coming from abroad to get themselves treated in state of the art medical facilities available in India. So this benefit accorded to the pharma sector will definitely be a big boost. Electronic sector mein BCD has been reduced on open cells for interactive flat panels, and it has been increased on completely built interactive flat panels display. Means अगर आप रेडीली मतलब कंप्लीट आप स्ट्रक्चर लेके आते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले का तो उस पर बढ़ा दिया गया है, लेकिन आप ओपन सेल्स लाते हैं फॉर द फ्लैट पैनल्स डिस्प्ले, देन इट हैज बीन रिड्यूस्ड.
मेटल एंड माइनिंग इज अनदर एरिया जहां पे की गवर्नमेंट ने अपना एम्फेसिस डाला है, एंड दैट इज काफी क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनकी वेस्ट एंड स्क्रैप इंपोर्ट होती है, एंड दीज आर वेरी सच मिनरल्स विच आर नॉट readily available everywhere. कॉपर, टिन, टंगस्टन, कोबाल्ट, इस तरह के काफी सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि इंडियन इंडस्ट्री में यूज होते हैं और जिनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव रहे इसलिए उनके ऊपर BCT has been fully exempted on such products. Similarly, an important development on the solar module. So tariff rate has been reduced from 40 to 20% in respect of solar module and other semiconductor devices and photovoltaic cells with effect from 1st May 25. लेकिन इनके ऊपर AIDC लगा दिया गया है 20%. So net effect कुछ नहीं रहेगा. It will be same. However, the BCT has been reduced. So that is there. And again, another aspect which is about the social welfare surcharge is that 25 goods under various chapters are being exempted from social welfare surcharge effective from 2nd February 2025. So ये intention है कि किसी भी तरह का सेसेस जो है वो ज्यादा ना लगे। अगर एक सेस लग रहा है तो दूसरा भी ना लगे। फॉर एग्जांपल SWS लग रहा है तो AIDC नहीं लगना चाहिए एंड वाइस वर्सा। तो शायद ये एक रेशनलाइजेशन की तरफ मूव है एंड इंडस्ट्री डेफिनेटली बेनिफिट करेगी। So this is from my side, and with this I come to an end to today's presentation. Thank you so much. Over to you, Reena ji. Thank you so much, Vikram sir, for your elaborate and excellent presentation, throwing light on the finer aspects of budget 2025 and its impacts on GST and customs. And you have really given a very comprehensive analysis of the same. Now I think we move towards the question answer session. Most of them are requesting to share the PPT, which we will be doing so. Acha, from Atul Goyal ji, LN Director, BME, to everyone, he's written many of them are restricted. It should be under OGL. I think that is a policy matter, sir. And sir, you'll have to give a representation to the government. I mean, we will not be able to comment on that. Right, Vikram ji? Absolutely. I mean, I'm sure the government is listening. आप देखेंगे कि many of the recommendations over here are as a result of the effective representation before the government, and the intent is very clear to support the local manufacturing. So if there is something which is you feel that is going to be helpful to the local industry, please go ahead and represent it, and I'm sure government will definitely listen. Yeah, please do that. Again, the second is also from Atul Goyal ji. Many critical minerals are restricted. It should be under OGL, and more people import as supply is needed for India's growth. Very true. So again, you must make a representation. As they said, I mean, they have exempted 15 critical minerals this time. Maybe going forward, they'll examine and maybe come out with some more, such products. Yes, sir. I think there are no more questions, sir. So there is one from my side, basically, as I discussed earlier during my speech, regarding this real-time settlement of GST payments. So Vikramji, if you can just put like the feasibility, if this is introduced by the government, so you may please put light on it. Yeah, sure, Sandeep ji. So what I understand is that आपका ये मानना है कि अगर हर प्रोडक्ट के ऊपर रियल टाइम पे ड्यूटी पे किया जाए तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द इंडस्ट्री। यानी कि वी आर हिंटिंग कि आप कंसाइनमेंट जब क्लियर कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री से, उस समय उस पर GST आपके पास अगर है, आप पे करिए और निकालिए, राइट? तो इवेजन का जो ओवरऑल जो आपका मानना है खत्म हो जाएगा। सो इसमें मुझे लग रहा है कि probably this used to be the case probably maybe 30 years back, no 25 years back, जब एक्चुअली कंसाइनमेंट वाइज ड्यूटी पेमेंट होता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे की जाती थी। आप पर्सनल लेजर अकाउंट या G23A पार्ट 2 रहता था, उसमें आप ड्यूटी डेबिट करते थे हर इनवॉइस के सामने और तभी आप क्लियर करते थे। तो शायद उस समय कॉन्शियस डिसीजन लिया गया था कि इंडस्ट्री को टू बूस्ट इंडस्ट्री, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, बूस्ट बिजनेसेस, ये डेफर्ड पेमेंट की एक फैसिलिटी दी जाए ताकि आप इनवॉइस बनाते समय आप उसको पे करेंगे तो आपको उतना कैपिटल ब्लॉक हो जाता है।
तो वो आप मंथ टू मंथ पेमेंट का फैसिलिटी जो इंट्रोड्यूस की गई थी। आप जो बता रहे हैं प्रोबेबली अगर उस तरफ वापस जाने की बात है तो ये इसके ऊपर शायद बहुत डिबेट्स होंगी, डेलिब्रेशंस होगी कि क्या ये जाना फीजिबल है इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। So I leave it to the best of the minds in the industry to take that call. But मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो track and trace mechanism है सर, that will definitely be helpful to your interest, और जो आप बता रहे हैं वो उसमें काफी हद तक प्लग होने के चांसेस हैं rather than on going on to this consignment wise payment. Yeah. लेकिन विक्रम जी पहले 16(2)C का रूल नहीं था ना एक्साइज रिजाइम में। अभी क्या हो गया कि 16(2)C है, तो आप ये सोचो तो कुछ ही नहीं सकता एक्चुअली। सप्लायर की गलती तो बायर को भुगतना है, उस समय वो तो था ही नहीं। Yes. नहीं एक्चुअली यू आर राइट कि जो ओनस डाला गया है, और इसमें भी काफी ऐसे जजमेंट्स हुए हैं रिसेंट टाइम्स में जहां पे कि ये बोला गया है कि द डिपार्टमेंट को बोला गया है कि आप जाकर के उन्हें पकड़िए जिन्होंने चोरी की है, रादर देन जो ईमानदार आदमी है जिसने पेमेंट कर दिया है। बट आई एम श्योर वी आर मूविंग टुवर्ड द राइट डायरेक्शन। ये वी आर इन द इनिशियल ईयर्स, और अभी गोइंग फॉरवर्ड जिस हिसाब से ये चेंजेस ला रहे हैं, अभी जैसे IMS फैसिलिटी है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप टुवर्ड्स दिस कि आप सामने वाला आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, आपके हाथ में दे दिया गया है, आप रिजेक्ट कर दीजिए, I mean that will give you a clarity. But again, lot of grounds is yet to be covered. But going forward, I guess we can go to the government with practical solutions, and I'm sure they will hear and implement. Vikramji, I have one question for you. Sir. With respect to the plant and machinery, where there is a huge confusion when the word plant comes in. So just to be a little specific and make it easier to understand, is an industrial shed considered a plant or is it considered a building? So, sir, this you are right. I mean, the whole debate started on that only. Yeah. Whether it should be considered as a plant or not. Right. Apparently, this new introduction of or this provision or clarifying this provision had made it very clear that anything which pertains to the land and building will not be treated as plant and machinery. So even though it may be a plant for you, but it has been brought into the exclusion clause by virtue of this amendment, which has been made effective retrospectively. So that's the only channel. Unless it's a machinery, a capital good, which is there, which is fitted to the ground for its use, etc., is fine. But a factory shed happens to be something which is a land and building, and therefore I think it will may not get covered here. Is it may, sir, or is it now sure? It is closed. The chapter is closed. There is no In fact, the chapter is closed, sir. Okay. Thank you. Let's take it down and dust it. But yes. Thank you. Yes, there is a question from Dharmesh Shahji, DSC. Notification 50 of 2017, Proviso 2nd has been deleted, which was import from USA applicable duty was 17.5%. However, notification 4 of 2025 customs has reduced the duty from 17.5 to 7.5%. Is this same duty applicable for import from USA? See, the tariff or the exemption does not, unless there is some specific countrywide exemption, it will be applicable to all the imports. So when you talk about 50/17, it's a general exemption notification. Okay, unless you are availing some sort of an FTA benefit, etc., then you can refer to that concessional rate. But 50/17 is applicable to all. However, I think we'll have to go to a specific notification which he is referring to, where probably for imports from USA there has been specific mention. So I need to see, what he is referring to, and then probably we'll be able to answer. But I am giving a generic reply that there has been a lot of rationalization of duties over here. So there is one last question, I think, from Mark S. Fernandez ji. The Honorable Finance Minister had announced that all importers could directly pay any customs duty which has not been paid without any penalties or SCM being issued. Could some light be shared if same has been implemented and the Customs Act amended accordingly? No. So as I mentioned here, that this new provision has been introduced.
right? Section 18A has been brought in, wherein if you feel that you have paid less, then you can go ahead and voluntarily make that payment. Okay. So that provision is yet to be introduced. But yes, this provision has been brought in order to facilitate the trade, that if they on their own they realize that more duty is to be paid and they paid less duty, they can go ahead and do that. But as I said, we need to actually wait for the regulations which are introduced for this particular type of transactions, because they have kept certain type of transactions out of it. For example, if there is an audit or any summon proceeding or any inquiry, they are not covered here. नहीं तो हर कोई जाएगा, inquiry चालू होगी, जाके pay कर दिया, हम बच गए. No, you will be out of it. But on your own, if you realize, probably it is meant for those genuine taxpayer who did a genuine mistake and they have on their own gone ahead and they're trying to make the payment. But we need to wait and see once the provisions are introduced in detail. Yes, sir. Thank you so much. I think we have clarified almost all the questions which were put up. And regarding the emails,